Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to continue our topic of linear equation in two variables. Okay, in this video, we are going to cover all the statement-based questions, which are very important. Okay, so the difference between two natural number is 3, and the difference between their reciprocal is 3 by 28. Find the numbers. So first of all, we will say let the numbers be natural numbers be x and y. So according to question, what it is saying that the difference between natural number. So we are also assuming that x is greater than y, then x minus y is equals to 3, and it is saying that the difference between their reciprocal is 3 by 28. So now if I am saying 3 is greater than 2, but if I do reciprocal of it, it will become 1 by 3 and 1 by 2. Now tell me which is greater. If I see in the decimal form, it is 0.33 and so on. And this is 0.5. So that means this is greater. So bigger value, if we take in reciprocal, it will become more smaller. Okay. So to get a difference in positive, अगर मेरे को डिफरेंस पॉजिटिव में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी. दैट मीन्स 1 by y minus 1 by x is equals to 3 by 28. अब इसमें क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, x x y y. So x minus 5 upon xy is equals to 3 by 28. अब गौर से देखें तो x minus 5 की वैल्यू तो हमें पता ही है. So x minus 5 is 3 upon xy is equals to 3 upon 28. This 3 in the numerator get cancelled out. I will get xy is equals to 28. Right? अब हमारे पास दो रिलेशंस हैं. फर्स्ट रिलेशन क्या है, x minus y is equals to 3. सेकेंड क्या है, xy is 28. चलो y की वैल्यू निकालते हैं. y is equals to 28 upon x. So सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं. इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो क्या होगा. पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, x minus 28 upon x is equals to 3. ये अपॉन में 1 है, into x जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए. So x square minus 28 upon x is equals to 3. Right? So x square minus 28 is equals to 3x. ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. राइट? सो x square plus 3x minus, no, 3x अगर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा. सो minus 3x minus 28 is equals to 0. अब इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 plus 4. बिकॉज 7 4s are 28 होता है और नेगेटिव है तो -7, माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी. राइट? सो लेट्स इरेज दैट. ये हो जाएगा x square minus 7x plus 4x minus 28 is equals to 0. x common, x minus 7 plus 4 common, x minus 7 is equals to 0. x minus 7 times x plus 4 is equals to 0. ये करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में. सो x की वैल्यू एक तो आ रही है 7 और x की वैल्यू एक आ रही है -4. गौर करिए क्वेश्चन क्या था, नेचुरल नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट. सो -4 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज नेचुरल नंबर मस्ट बी पॉजिटिव. सो x is equals to 7, ये वैल्यू आ गई. एंड दूसरी रिलेशन क्या दे रखी है, x minus y is equals to 3. वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. So x minus y is equals to 3. So y is equals to minus y equals to 3 minus x, or minus y is equals to 3 minus of 7. So minus y equals to -4, y equals to 4. This is x is 7, y is 4. This is the result. Okay, let's see the next question. Next question में क्या बोला है कि the sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice of denominator. So equation क्या बनेगी इसमें,
let's say fraction is x upon y. वो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि sum of numerator and denominator x plus y is equals to 3 less than twice of denominator. 3 less twice of denominator. So 2y minus 3. This is the first equation. If the numerator and denominator are decreased by 1, the numerator becomes half of the denominator. अगर numerator and denominator दोनों को 1 minus कर दिया तो numerator becomes half of denominator. So x minus 1 is equals to half of y minus 1. Okay, ये दो equations मिल ली हमें. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर 2y उधर लेकर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? x plus y minus 2y is equals to minus 3. x minus y is equals to minus 3. ये पहली इक्वेशन आ गई. अगर मैं इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x minus 2 is equals to y minus 1. So 2x minus y is equals to minus 1 plus 2, that is 1. So दूसरी इक्वेशन 2x minus y is equals to 1. दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, जस्ट वी नीड टू सॉल्व टू फाइंड x and y. सो एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ रहा है इसमें, दोनों में -1 आ रहा है, राइट? तो x minus y is equals to minus 3, 2x minus y is equals to 1, minus plus minus, this get cancel out, minus x is equals to minus 4, x is equals to 4, and x minus y कितना होता है? -3 है, तो x minus y is equals to -3, 4 minus y equals to -3, minus y equals to -3 minus 4, so y is equals to 7. Yes. So हमारी fraction क्या बन गई? Fraction will be 4/7. This is the answer. Okay. Let's see the next question. Next question में क्या बोला है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है a 2-digit number is such that the product of its digit is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. So let the number be 10x plus y. देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखना है, जैसे 23 लिखना है, तो मेरे को जो 2 है डिजिट उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3 into 1, क्योंकि ये 1th प्लेस पे और ये 10th प्लेस पे. तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और 1 प्लेस वाले को 1 से. सो दैट विल मेक अ 2 डिजिट नंबर. दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर. ओके, सो वही कॉन्सेप्ट लगा के अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ओनली. सो x into y किसके बराबर है? 14 के बराबर है. एंड if I add 45, so अगर मैं 10x plus y जो कि नंबर है इसमें 45 ऐड करता हूँ तो इंटरचेंज हो जाते हैं डिजिट्स. तो क्या होगा इसमें? डिजिट्स विल बी 10y plus x, क्योंकि अगर 23 लिखा है तो 32 लिखने के लिए 3 into 10 करना पड़ेगा, तो डिजिट्स चेंज हो गए, उनका प्लेस वैल्यू चेंज हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा इस केस में? अगर मैं दोनों को उधर ले जाता हूँ, so 10x plus y plus 45 minus 10y minus x is equals to 0. 10x minus x is 9x. Y minus 10 is what? Minus 9y plus 45 is equals to 0. क्या इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? 9 कॉमन ले लेते हैं. 9 कॉमन लेते ही x minus y plus 5 is equals to 0. Right? So x minus y is equals to minus 5. ये आ गई हमारी एक रिलेशन. ओके, तो x y is equals to 14 एक और रिलेशन है. सो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे इसमें, राइट? सो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं. y is equals to 14 upon x. सो कितना आ जाएगा इसमें? पुट करते हैं इसमें वैल्यू. So x minus 14 upon x is equals to minus 5.
अपॉन 1 है तो इंटू एक्स करना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, राइट? तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 2 7 14 होता है तो 14, राइट? 2 7 14, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस 7 माइनस 2, राइट? तो करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 7 is equals to 0. X plus 7 common, I will get x minus 2 here, 0. X is equals to minus 7 and x is equals to plus 2. ये दो वैल्यूज आई हैं मेरे पास x की। अब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगी ना, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। x is equals to 2। अब याद करो x y is equals to 14 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 by x, 14 by 2, तो 7 आ गया। सो नंबर क्या हो गया, 10x, 10 into 2 plus 7, so 27 is my number. Okay, correct? Let's see the next question. Next question में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 5 years ago A was thrice, so present age A की हम A ही ले लेते हैं कैपिटल A, एंड B की हम B ही कर देते हैं, ईयर्स लगाना ज़रूरी है। अब वो कह रहा है कि 5 years ago, 5 years ago A की वैल्यू कितनी होगी, A minus 5, B की वैल्यू कितनी होगी, B minus 5, that age, right? years, years। उसमें इसने एक इक्वेशन बोली कि 5 years ago A is thrice as old as B, so A की जो उम्र थी वो thrice थी, 3 गुनी थी B minus 5 के, तो ये होगी इक्वेशन 1। Now it is saying and 10 years later, 10 years later, अब क्या होगा, A की वैल्यू A plus 10 हो चुकी है years, and B की वैल्यू B plus 10 हो चुकी है, right? Then it is saying कि A shall be twice as old as B, so A plus 10 will be twice as old as B, B plus 10। Now it is saying find the present age of A and B, so A and B की वैल्यू बतानी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, right? Let's erase these things। दो इक्वेशन है, let's solve it। so A minus 5 is equals to 3B minus 15। so अगर मैं इसको solve करता हूँ तो A minus 3B is equals to minus 15 plus 5 जो कि आ गया minus 10। so A minus 3B is equals to minus 10, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। A plus 10 is equals to 2B plus 20, तो क्या हो जाएगा, A minus 2B is equals to 20, ये 10 उधर जाके minus 10 हो गया, so A minus 2B is equals to 10, A minus 2B is equals to 10। अब गौर करें तो हमारा जो A का जो वेरिएबल है दोनों के केस में 1 है, तो माइनस एलिमिनेशन मेथड, ये गेट कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 2 माइनस B, एंड माइनस B माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20, B की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ईयर्स। ओके, सो अब A की वैल्यू निकालते हैं। एक अगर हम देखें A का रिलेशन क्या है, ये वाला देख लेते हैं कि जो A इज इक्वल्स टू, अगर यहां से हम निकालें -10 + 3B, राइट?
So a is equals to minus 10 plus 3 into 20. So a is equals to minus 10 plus 60. A will be equals to minus 10 plus 60, 50 years. ओके, तो a की वैल्यू पता चल गई है एंड b की वैल्यू पता चल गई है. क्लियर है? दिस इज द आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? Place A and B are 160 km apart from the highway. One car starts from A and another from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. If they travel in opposite direction, they meet in 2 hours. Find the speed of each car. So दो है मेरे पास, एक A है, ये B है. इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है. अगर हम फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, फर्स्ट सिनेरियो में ये इस तरफ जा रहा है और B भी इसी तरफ जा रहा है, तो नेट कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट इज, अब देखो स्पीड यहाँ पे जो टर्म है ना, इसको हम वेलोसिटी लिखते हैं. अगर गौर करो, रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में भी. सो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये ऐड हो जाएंगे सेम ही डायरेक्शन में. बट जो भी सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? x, अगर ये हमने पॉजिटिव मानना है तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे माइनस ऑफ सेकेंड. सो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई. ओके, दिस इज किलोमीटर पर आवर. अगर सेकंड केस देखें, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें ऐड होगा. ऊपर वाले में तो सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाले में ऐड होगा. इसमें क्या होगा? अगर ये x है और ये y की स्पीड से आ रहा है, तो x माइनस ऑफ माइनस y, तो कितना हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस तो 160 कितना है? 160 किलोमीटर ही है. केस 1 और केस 2 का बात पता चल गई. इसमें टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर्स लग रहा है. इसमें हमें टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स लग रहे हैं. राइट, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. राइट, तो स्पीड कितनी है मेरे पास यहाँ पे? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 160 अपॉन टाइम इज 8. सो कितना हो गया ये? 20. सो एक रिलेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20. दूसरी, स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे कितना लग रहा है? 2 आवर्स सेकेंड केस में. तो ये कितना हो गया? 80. तो दूसरी इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80. जस्ट वी नीड टू सॉल्व दीज टू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. लेट्स इरेज ऑल द थिंग्स. तो सेम डायरेक्शन में मतलब माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब प्लस होगा. याद रखना ये चीज. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x plus y is equals to 80, minus minus minus. This get cancel out. Minus 2y equals to minus 60, y is equals to 30 किलोमीटर पर आवर. एंड अगर मैं इस रिलेशन को देख लेता हूँ, that is x is equals to 20 plus y. So x is equals to 20 plus 30, that is 50. So 50 kilometer per hour. This is the answer. Okay. Let's see the next question. Next question में क्या बोला है? Again 2-digit number 3 more than 4 times the sum of its digit. Okay. A 2-digit number is 3 more than. Okay, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? Let number be 10x plus y. Okay. Now 4 times 3 more. Okay, so 10x plus y is equals to 4 times the sum of the digit plus 3. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. So अगर मैं इसमें
18 ऐड कर दूं इस नंबर में तो ये रिवर्स हो जाता है, दैट इज 10y प्लस x हो जाता है। सो दोनों से पहले हम इक्वेशन निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगी, 10x plus y is equals to 4x plus 4y plus 3। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x minus 4x, ये उधर जाएगा अगेन plus y minus 4y equals to 3। So 6x minus 3y is equals to 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेते ही 2x minus y is equals to 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। सो 2x minus y equals to 1। ये होगी पहली इक्वेशन। ओके, अब हम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन को कैसे करेंगे हम, 10x plus y plus 18, अब इन दोनों को इधर ले जाओ, minus 10y minus x is equals to 0। 10 minus x 9x, y minus 10 is minus 9y is equals to minus 18। अगर मैं यहाँ पे 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 9x minus y is equals to minus 18। अब ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x minus y is equals to minus 2। ये आगे मेरे पास दूसरी रिलेशन। सो मेरे को तो x and y की वैल्यू भी निकालनी है, राइट। सो x and y की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो क्या होगा इस केस में, 2x minus y is equals to 1, x minus y is equals to minus 2। Denominators are the coefficient of y are same, so we will use elimination method। This get cancel out, x 2 minus 1 is 1 ना, x is equals to 3। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, पहला रिजल्ट। एंड x minus y कितना होता है, minus 2। so minus 3 minus y is equals to minus 2, minus y is equals to minus 2 minus 3, that is minus 5, y is equals to 5। अब y 5 है, x 3 है, तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, 10 into 3 plus 5, that is 35। This is our number। Okay, let's see the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन अ 2800 किलोमीटर फ्लाइट द एयरक्राफ्ट स्लोज डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन। सो देखो, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। ये हो गया, बट हमें तो टाइम से मतलब है, राइट। अगर मेरे पास ओरिजिनल स्पीड अगर हम लेते हैं, स्पीड जिसे हम एस नॉट भी बोल लेते हैं, एस ओ ओरिजिनल, वो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस है 2800 किलोमीटर एंड हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम t है, मान लेते हैं, लेट टाइम बी t, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ओरिजिनल टाइम इज इक्वल्स टू t आवर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा ओरिजिनल स्पीड। न्यू स्पीड कितनी होगी, न्यू स्पीड इज Sn, सेम डिस्टेंस एंड टाइम देखो 30 मिनट्स लेस है, आवर्स की बात हो रही है तो t माइनस 1/2, क्योंकि 30 मिनट्स क्या होते हैं, 1/2 आवर्स ही तो होते हैं, हाफ आवर। तो हमारे ये आ गया S ओरिजिनल एंड S न्यू। नाउ डिफरेंस कितना है दोनों में, रिड्यूस्ड बाय 100, तो Sn माइनस S ओरिजिनल माइनस Sn किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 100 ही तो कम करा उसने, 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, 2800 अपॉन t माइनस 2800 अपॉन t माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 100। ओके,
क्लियर है ये चीज? अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स इरेज ऑल द थिंग्स। हमें t की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अगर मैं 2800 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/t माइनस 1/t माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 100। ये 00 से 00 कट जाएगा एंड 28 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/t माइनस 1/t माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/28। ओके, ये बात क्लियर होगी? ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम लेने से पहले इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये अपॉन 1 में इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1/t माइनस 1/2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/28। अब ये जो डिवाइड हो रहा है नीचे वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1/t माइनस 2/2t माइनस 1 is equals to 1/28. Okay, this will it will become this. Now let's erase this also. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2t माइनस 1 से एंड 2t माइनस 1 से एंड इसको t से। ओके, तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस 1 minus 2t divided by t times 2t minus 1 is equals to 1/28. If this 2t get cancel out and 28 cross multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 तो था ही ऊपर, तो कितना हो जाएगा, -28। -28 is equals to t times 2t minus 1। अब इसको ओपन कर लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, 2t square minus t is equals to -28 and 2t square minus t minus 28 is equals to 0. Okay? अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, राइट? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, राइट? अब क्या होगा, हम क्या करते थे, इसको एंड इसको पहले मल्टीप्लाई करते थे 2 into 28, और 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 into 14, 14 को 2 into 7 एंड ये 2 तो था ही यहाँ पे, सो 8 into 7, 8 7 जा, ये चीज़ आएगी, राइट? एंड अगर हम देखें -8 + 7 तो ये बीच वाली चीज़ आ रही है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। सो 2t square minus 8t plus 7t minus 28 is equals to 0। इसमें 2t कॉमन लेते ही t minus 4 आ जाएगा, प्लस 7 कॉमन लेते ही t minus 4 is equals to 0। So t minus 4 times 2t plus 7 is equals to 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली t minus 4 is equals to 0, t की वैल्यू कितने आ गई 4, 2t plus 7 equals to 0, t की वैल्यू -7/2। टाइम तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता टाइम। सो t is equals to 4, तो टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। तो उसे कितना टाइम लगा, 4 घंटे लगे उस ओरिजिनल फ्लाइट को। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द cab driver charges in a city comprise of a fixed charge together after the charge for the distance covered. For a journey of 12 kilometer, the charge is 89. So 12 kilometer के लिए कितने चार्ज कर रहा है वो, 89 रुपीज, एंड 20 किलोमीटर्स के लिए 145, और एक फिक्स चार्ज ले रहा है उसके ऊपर, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो चार्ज ले रहा है,
And what will be the person need to pay for traveling a distance 30 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क. तो हम बोलेंगे लेट फिक्स्ड कितना चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्जेस x रुपीज x एंड पर किलोमीटर चार्ज का हम ले लेते हैं रुपीज y. तो x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 89, दूसरा x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 145. क्योंकि 20 किलोमीटर चला, इस केस में 12 किलोमीटर चला, पर किलोमीटर के y चार्ज कर रहा है, राइट. साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया. -20 प्लस 12 विल बी -8y इज इक्वल्स टू 145 में से 89 गए तो 145 में से 89 निकालते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये 13. 15 में से 9 गए इट विल बी 6 एंड 13 में से 5 56, तो 56 एंड वो भी इन नेगेटिव क्योंकि बड़ा वाला क्या है नेगेटिव है. माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 56/8, राइट. सो 7 पे ये हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 7. सो 7 रुपीज पर किलोमीटर की चार्ज कर रहा है वो. एंड अगर हम रिलेशनशिप देखें इसमें x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 89 था, सो x प्लस 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 89. सो x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 89. x के लिए कितनी आ जाएगी 89 माइनस 84. So 89 में से 84 गए, that is 5. So x is equals to 5. So fixed के लिए 5 rupees और पर किलोमीटर के लिए 7 rupees charges है. Okay, so that's all. These all are the most important statement based question. Hope you understand all the questions. Have a nice day. Bye.